میں ہرگز پاکستان نہیں جاؤں گی اور نہ میں کسی سے شادی کروں گی۔ کان کھول کر سن لیجیے آپ لوگ، وہ گھر واپس آئی تو اس کے والد نے اسے کل ہی صبح کی ٹکٹ دے دی تھی۔ وہ سب لوگ پاکستان جانے والے تھے، وہاں جا کر ان کا ارادہ اس کی شادی کر دینے کا تھا، کیونکہ آج ہی ان کے بڑے بھائی ان کے گھر آئے تھے اور ان کے گھر آتے ہی انہوں نے ساری باتیں انہیں بتا دی تھیں اور کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو سنبھالو، ہمارے بیٹے کی شادی وہیں ہوگی جہاں ہم چاہتے ہیں۔ ان کی بات پر زائنہ کے والد نے اسی وقت پاکستان کی ٹکٹ بک کروا دی تھی۔ ان کی بیٹی ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی۔ اس کی پیدائش پر ہی وہ اس کا رشتہ ابراہیم کے ساتھ طے کر چکے تھے اور وہ کسی بھی قیمت پر اس رشتے کو توڑنے کے حق میں نہیں تھے۔ اس لیے زائنہ کا چیخنا چلانا، وہ ہر چیز اگنور کیے ہوئے تھے۔ اگر تم پاکستان نہیں جاؤ گی تو دفع ہو جاؤ اس گھر سے۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو یہ مت سوچنا کہ تم میری اکلوتی بیٹی ہو، میں سب کچھ تمہارے نام کر دوں گا، ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی تمہیں۔ یہ ساری جائیداد میں کسی راہ چلتے کے نام کر دوں گا، لیکن تمہیں ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ اس میں اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یاد رکھنا زائنہ، ساری زندگی سڑک پر بھیک مانگتی پھرو گی تم۔ وہ بے حد غصے سے کہتے گھر سے نکل گئے، جبکہ زائنہ کے سامنے اپنے باپ کی کروڑوں کی جائیداد گھوم کر رہ گئی۔ وہ گھر واپس آیا تو اچھا خاصا تھکا ہوا تھا۔ اس کے دروازہ کھولنے پر مسکرا کر وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا سر انتہائی شدت سے درد کر رہا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک وہ فلم کی شوٹنگ میں مصروف رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اس کے لیے پانی لاتے اس سے پوچھنے لگی۔ جبکہ پانی کا گلاس اپنے اندر اتارتا وہ سر صوفے کے ساتھ لگا گیا۔ سر میں بہت شدید درد ہے، بہت کام تھا آج، صبح سے لے کر شام تک انہی کاموں میں مصروف رہا ہوں، اب بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے بولا، بس اتنی سی بات اور آپ کا موڈ بنا ہوا ہے؟ ادھر کریں اپنا سر، میں دباتی ہوں، ابھی آرام مل جائے گا۔ وہ اپنی گود کی طرف اشارہ کرتے بولی تو اس نے مسکرا کر اس کی گود میں اپنا سر رکھا۔ وہ جب بھی اس کے قریب ہوتی وہ بہت سکون میں ہوتا تھا۔ اس وقت بھی اس کا سکون اس کے بے حد قریب تھا۔ تناوش کو دیکھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی، جیسے وہ اس کے مسکرانے کی وجہ ہو۔ اس کی گود میں سر رکھتے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جبکہ وہ آہستہ آہستہ اب اس کا سر دبا رہی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو احمد اور چھوٹو اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے، جبکہ وہ اب تک دلہن کی طرح تیار بیڈ پر بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے بعد ٹیچر نے احمد کو مرغا بنایا اور کلاس کے باہر کھڑا کر دیا۔ چھوٹو پوری طرح سسپینس پھیلاتا اسے اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے تھا، جبکہ وہ آئینے کے سامنے رکتے ہوئے اپنی شیروانی اتار کر ایک طرف پھینک چکا تھا اور اب صوفے پر بیٹھا اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ کب تک ختم ہوگی تم لوگوں کی یہ داستان؟ وہ ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا۔ بھیا میں بھابھی جان کو وہ والی بات بتا رہا ہوں جب اسکول ٹیچر نے احمد کو مرغا بنایا تھا اسکول میں۔ چھوٹو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا کہ وہ کون سے اہم بات کا ذکر کر رہا ہے۔ چھوٹو، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ احمد کو بھائی کہہ کر بلایا کرو، بڑا ہے وہ تم سے۔ اس نے اسے گھر کا تھا، لیکن اسے دیکھ کر بڑے بھائی والی فیلنگ تو آتی ہی نہیں۔ چھوٹو بے حد کم آواز میں منمنایا، جس پر مائرہ کی ہنسی نکل گئی، حالانکہ اس کی آواز فارغ تک پہنچی ہی نہیں تھی، ورنہ یقیناً اس کی پھینٹی لگ جانی تھی۔ چلو اب نکلو کمرے سے، ہمیں سونا ہے۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں نا مجھ سے، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ویسے بھی ابھی سونے کا وقت نہیں ہوا، اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ سارا دن اس کی خود پر نظریں محسوس کرتی رہی تھی، جبکہ اس کی نظروں سے اسے عجیب سا خوف آ رہا تھا، اسی لیے اس نے آج ان دونوں کو یہیں سلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان دونوں نے صبح اسکول جانا ہے، آج بھی ان کی چھٹی ہو گئی ہے، اس نے بتانا ضروری سمجھا۔ بھائی کل چھٹی؟ احمد نے معصوم شکل بنا کر کچھ کہنا چاہا جب اس کی گھوری نے اس کا منہ بند کر دیا۔ وہ دونوں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر فارغ خود ان کو ان کے کمرے تک چھوڑنے کے لیے گیا تو ان کے لیے کافی مشکل ہو جائے گی، اس لیے خود ہی ان دونوں نے جانا بہتر سمجھا۔ اب تم اٹھ کر چینج کر لو یا ساری رات یوں ہی دلہن بن کر بیٹھے رہنا۔ اور ایک اور بات، خالہ کچھ دن تک یہیں رہیں گی اور ان کی بیٹی صدف بھی، تو ان کے سامنے ہمیں تھوڑی بہت… ہائے شکر، اب تک دروازہ بند نہیں ہوا تھا، مجھے تو لگا کہ اب تک تم لوگ مصروف ہو چکے ہوگے، میرا مطلب سو چکے ہوگے۔ معاف کرنا بیٹا، میں تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہوں، وہ اصل میں صدف کی طبیعت بہت خراب ہے، اگر تم کسی ڈاکٹر کو بلا دو تو۔ اصل میں زبردستی لائی تھی اس بیچاری کو یہاں، وہ تو آنا ہی نہیں چاہتی تھی، دل ٹوٹا ہے نا اس کا، کوئی مذاق تھوڑے ہی ہے، لیکن میں بھی نا اس کے لیے بڑی ظالم ماں ثابت ہوئی ہوں۔ خیر رشتہ داریاں تو نبھانی ہی پڑتی ہیں نا، اور میری بہن کے پاس میرے علاوہ اور کون سا رشتہ ہے، بس اپنی بہن کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے میں آ گئی۔ وہ کاٹدار نظروں سے مائرہ کو دیکھتے بولی، ارادہ اسے بتانے کا تھا کہ صدف کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں شامل ہے،
नीचे टेलीफोन के साथ डायरी पड़ी है, सारे डॉक्टर्स के नाम लिखे हैं, नीचे से किसी भी मुलाजिम को कह दें वो कॉल कर देगा। अब आप जाएं, हम काफ़ी थक गए हैं। वो उन्हें देखते काफ़ी सख्त लहजे में बोला था। वो अब एक शादीशुदा आदमी था। अपने नाम के साथ सदफ़ का नाम लगाना उसे हरगिज़ पसंद नहीं आया था। और फिर खाला का अंदाज़ भी कुछ ऐसा था कि वो सख्ती पर मजबूर हो गया। ये अलग बात कि वो लिहाज कभी भी किसी का नहीं करता था। और कितना कड़वा इंसान है ये, अपनी खाला से इस तरह बात कर रहा है, और खाला भी वो जिसकी बेटी पर ये खुद ही फिदा है। सदफ ने खुद को इसकी पसंद के मुताबिक ढाला था, तो दोनों में कोई ना कोई ताल्लुक है ही। और उस लड़की को मोहब्बत की राहों पर लगाकर ये खुद कैसे रास्ता बदल गया। मैं घटिया और नीच किरदार की हूँ। खुद तो जैसे बहुत पारसा और पाकीज़ा है ना, वो उसे घूरते हुए सोच रही थी, जबकि खाला कमरे से बाहर कब गई उसे पता ही नहीं चला। अगर मेरा मुआयना कर लिया हो तो चेंज कर लो। वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ तो मायरा जैसे होश की दुनिया में आई। वो फ़ौरन बेड से उठी और तेज़ी से वॉशरूम की जानिब गई, जब अचानक बुरी तरह से उससे टकरा गई। वो तो खुद भी इस उफ्ताद के लिए तैयार न था। बेसाख्तगी में उसके गिर्द अपना घेरा मजबूत कर गया। वो पूरी तरह से उसके सीने में चुभ गई थी, और उसकी ये हरकत वारिक के दिल के सारी धड़कनों को हिला कर रख गई थी। वो कब उसे खुद में कैद कर गया उसे खुद भी पता न चला। उसका हसीन आतिशी रूप उसे बुरी तरह से बहका रहा था। वो जितना उससे दूर होने की कोशिश कर रहा था, वो उतना ही उसके पास आ रही थी। वो जल्द से जल्द उसको चेंज करवा लेना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो उसके इस हसीन रूप को ज़्यादा देर तक देखे, जिसमें वो उसे बुरी तरह अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी, क्योंकि उसका ये रूप कहीं ना कहीं उसके अंदर अपने हकूक़ लेने के लिए जंग लड़ रहा था। क्या मसला है लड़की, तुम्हारे साथ सीधे तरीके से चल भी नहीं सकती क्या? वो उसे खुद से पीछे करते बोला, जबकि उसके करीब आने पर उसकी धड़कनों में अलग इश्तियाल बरपा था, और उसकी आंखों में आंसू देखकर तो जैसे उसका दिल ही धड़कना भूल गया था। अभी थोड़ी देर पहले तो वो छोटू और अहमद से बातें करने में मसरूफ़ थी, अब ऐसा क्या हो गया था कि वो यूं रोने लगी। ओहो, कहीं तुम्हें ताशफैंद की तो याद नहीं आ रही? इरादा तो तुम्हारा उसकी दुल्हन बनकर सेज सजाने का था ना? उसका लहजा तंज़िया था। न जाने क्यों वो इतना कड़वा होता जा रहा था, वरना वो किसी लड़की के किरदार पर उंगली उठाने वाला हरगिज़ नहीं था। हाँ बिल्कुल, उसी को याद कर रही हूँ, क्योंकि वही तो एक सच्चा दोस्त था मेरा, जो ज़िंदगी के हर कदम पर मेरे साथ था, मेरी गलतियों पर पर्दा डालता था। वही तो मेरा दोस्त है जो मुझे बताया करता था कि मायरा, तुम कुछ भी कर लो ना, तुम्हें मैं कभी भी किसी मुसीबत में नहीं फंसने दूंगा। कितने बेवकूफ़ हो तुम लोग, मेरा बेटा, मेरा भाई, और पता नहीं क्या क्या। और हकीकत तो ये है कि तुम लोग जानते ही नहीं कि उसके दिल में क्या था। आज तुम लोगों को ताशफैन और तनाबुश को एक साथ खुश देखना है। तुम लोग चाहते हो कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। आज तुम लोग चाहते हो कि ताशफैन हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाए। आज तुम लोग दावेदार हो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, लेकिन जब वो वहाँ न्यूयॉर्क की सड़कों पर भूखा प्यासा सर्दी में ठिठुर रहा था, तब कहाँ मर गई थी तुम लोगों की ये मोहब्बत? तुम चाहते हो कि ताशफैन यहाँ आ जाए, इस घर में तुम लोगों के साथ रहे, लेकिन क्या तुमने ये भी जानने की कोशिश की कि उसने अपनी ज़िंदगी के ये 17 साल कहाँ गुजारे, किस तरह से रहा? और मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को, अपनी बहन का घर बचाने के लिए तुमने मुझसे निकाह तो कर लिया, लेकिन तुमने मेरे बारे में कुछ जानना ज़रूरी ही नहीं समझा। इतने पागल हो तुम लोग कि ताशफैन ने बस एक दफ़ा कह दिया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे शादी करना चाहता है, तो तुमने पागलों की तरह उसकी बात पर यकीन कर लिया। तुम्हारे ताशफैन वाले ताने पर मुझे तुम पर गुस्सा नहीं, हंसी आती है, तुम्हारी बेवकूफ़ी पर, क्योंकि ताशफैन ने ये झूठ सिर्फ तुम लोगों से जान छुड़वाने के लिए कहा था। तुम लोगों से पीछा छुड़वाने के लिए उसने कहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन अफसोस उसकी बात पर तुम लोगों ने यकीन कर लिया। तुम लोग जानते हो ताशफैन तुम लोगों से नफ़रत क्यों करता है? नहीं, क्योंकि तुम लोग सिर्फ उस बात पर यकीन रखते हो जो सामने होती है। तुम्हारे हर बात के दो पहलू होते हैं वारिक साहब, तुम लोगों ने कभी उसका हिडन पहलू देखा ही नहीं, हमेशा उस बात पर यकीन किया जो तुम लोगों के सामने आया। ताशफैन की माँ ने कह दिया कि वो अपने बाप से नहीं मिलना चाहता, तो उसके बाप ने कभी कोशिश ही नहीं की उससे मिलने के लिए। ताशफैन की माँ ने कह दिया कि वो अपनी माँ के साथ खुश है, तो तुम्हारे बाप ने ये जानने की कभी कोशिश ही नहीं की कि वो खुश है भी या नहीं। ताशफैन की माँ ने कह दिया कि ताशफैन को उसके बाप की तरफ से कुछ नहीं चाहिए, तो तुम्हारे बाप ने भी उसे कुछ देने की कोशिश नहीं की कभी। ताशफैन के बाप ने कभी ताशफैन से मिलकर ये नहीं पूछा कि वो क्या चाहता है, वो किसके पास रहना चाहता है, उसकी ज़िंदगी कैसी है। उसने सिर्फ वो देखा जो ताशफैन की माँ उसे दिखाना चाहती थी। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, और ना ही सारी ज़िंदगी कभी मतलब होगा, लेकिन आज मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ताशफैन जो बात भी तुम्हारे बारे में कहता था बिल्कुल सही
यही कहता था, तुम लोग वैसे ही हो जैसे वो बताता था। और कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हें कभी भी अपने किरदार के हवाले से कोई सफाइयाँ दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ना तो तुम्हारे साथ रहना है और ना ही तुम पर ये बात साबित करनी है कि ताशफैन के साथ मेरा कोई अफेयर था। तुम सारी ज़िंदगी यही बात समझते हो ना मेरे बारे में। मुझे कोई मसला नहीं, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी घटिया सोच। वो गुस्से से कहती अंदर की तरफ चली गई, जबकि वारिक उसकी बातों पर गौर करता रहा, लेकिन उन सारी बातों का मतलब वो अब भी नहीं समझ पाया था। उसे अगर कुछ समझ आया तो सिर्फ इतना कि ताशफैन की माँ आज उसके बारे में आज तक उनसे झूठ बोलती आई थी। हकीकत तो ये थी कि वो अपने बाप के पास रहना चाहता था, वो अपने बाप से मिलना चाहता था, वो अपने बाप के पास जाना चाहता था, लेकिन सिर्फ अपनी जीत की खातिर उस औरत ने ताशफैन को उसके बाप से अलग कर दिया। वो अपने बेड पर बैठा था जब अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद खाला दोबारा आई थी। वो अपना मूड ठीक करते दरवाजे से बाहर निकला तो बाबा खड़े थे। क्या हुआ बाबा, सब ठीक तो है? आप इस वक्त यहाँ? वो परेशानी से उन्हें देखने लगा। वो तो कभी भी उसके कमरे तक नहीं आए थे। वारिक, क्या तुम जानते हो? हाथ में वो एक तस्वीर पकड़े हैरानगी से देख रहे थे। बाबा ये क्या है, आप किस सिलसिले में बात कर रहे हैं? वो उनके हाथ से तस्वीर लेकर देखने लगा। जी बाबा, मुझे पता है इसका। उसने तस्वीर को देखते बस इतना जवाब दिया। कब से जानते हो तुम इसे, और तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? बाबा बरहम हुए। मैं आपको इस बारे में बताना चाहता था बाबा, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आपको किस तरह बताऊं। मैं खुद कंफ्यूज था, पहले खुद सब कुछ जानना चाहता था। मैं नहीं जानता कि इसे अभी तक इन चीज़ों के बारे में कोई खबर है या नहीं, और सच कहूँ तो मुझे अब तक नहीं पता, लेकिन आपसे वादा करता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। वो उनके कंधे पर हाथ रखते बोला, जब आज वो पार्टी में आया तो मुझे यही लगा कि वो कुछ बिगाड़ने आया, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था। नहीं बाबा, वो इस बारे में कुछ नहीं जानता, और ना ही हम इस बारे में किसी को कुछ बताएंगे। और बेहतर है कि वो आदमी हमारे घर से दूर ही रहे, उसे हमें अपनी फैमिली से दूर रखना होगा। वो कुछ सोचते हुए बोला। जब बाबा ने हाँ में सर हिलाया, वो सब तो ठीक है, लेकिन मायरा के बारे में क्या सोचा है तुमने? क्या करना है अब? उसके बारे में क्या सोचना है बाबा? उसे यहाँ लाने के पीछे वजह ताशफैन था, लेकिन तुम उसे निकाह करके अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुके हो वारिक। दुल्हन है वो तुम्हारी, बीवी है तुम्हारी, बीवी के रूप में इस वक्त तुम्हारे कमरे में मौजूद। वो कभी ताशफैन की ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि अब तुम्हारी बीवी है, उस पर तुम्हारा हक है। अगर तुम सारी ज़िंदगी अपनी बहन का घर आबाद करने में लगे रहोगे तो अपना घर कब बसाओगे? ताशफैन को यहाँ आते न जाने कितने साल लग जाएंगे। क्या तब तक तुम सिर्फ ये सोचकर इस लड़की को अपने साथ रखोगे कि ये ताशफैन और तनावुश के बीच की दीवार है? अपना घर नहीं बसाओगे, अपने बारे में नहीं सोचोगे? मायरा में मुझे बज़ाहिर कोई बुराई नज़र नहीं आई। वो एक नॉर्मल सी लड़की है। अगर ताशफैन से मोहब्बत करती थी तब भी वो अब तुम्हारे निकाह में, और तुम में इतना दम तो है कि तुम अपनी बीवी को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दो। सारी ज़िंदगी वो ताशफैन की मोहब्बत बनकर रहेगी क्या? नहीं, इसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। अगर तुम उसे ताशफैन की ज़िंदगी से निकाल चुके हो तो इसे अब अपनी ज़िंदगी में शामिल करो। वो मासूम इतनी भी बेमोल नहीं कि तुम उसे सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करो। बाबा न जाने क्या क्या कह रहे थे और क्या सोच कर कह रहे थे, लेकिन उनकी बातें गलत नहीं थी। अगर वो ताशफैन से मोहब्बत करती थी तब भी उसका निकाह उससे हो चुका था। अब उसे उसके साथ आगे बढ़ना था, और सच तो ये था कि कहीं ना कहीं वारिक इस बात पर यकीन कर चुका था कि ताशफैन और उसका रिश्ता सिर्फ एक मजाक था, जो ताशफैन ने झूठ के तौर पर इस्तेमाल किया था। वरना मायरा इतने यकीन से अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो सकती थी। जाओ, मायरा तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। अपने दिल से हर उल्टी सीधी बात निकाल दो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मुझे यकीन है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बेहतरीन वक्त गुजार सकते हो। वो उसका कंधा थपथपाते हुए वहाँ से चले गए, जबकि वारिक भी कमरे का दरवाज़ा बंद करता अंदर आ गया। वो कमरे में आया तो वो सोने के लिए लेट चुकी थी। कल की तरह आज भी उनके बीच तकियों की दीवार कायम थी, जिसे देखते ही उसके लबों पर मुस्कुराहट आई। वो अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो वो सोती जागती कैफियत में थी। वो अपने हसीन रूप को बहुत ज़्यादा सादा से रूप में बदल चुकी थी। सफ़ेद कलर के कुर्ते के साथ सिंपल से पाजामे में वो इजी अंदाज में बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन एक बात मानने वाली थी, वो इस रूप में भी कयामत ढा रही थी। आज उसने उसका तकिया लेने की गलती नहीं की थी, बल्कि आज वो अपने तकिए पर अपनी नींद पूरी कर रही थी। उसने शायद कल ही नोट कर लिया था कि उसका तकिया कौन सा है, और अब वो ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं करने वाली थी।
जिससे वो उसके करीब आ पाता। कल रात उसका अचानक यूं करीब आना उसे बुरी तरह डरा गया था। वो आकर अपनी साइड पर लेटा और दूसरी तरफ करवट लेने की बजाय आज उसकी करवट मायरा की तरफ थी। वो एक नज़र आंखें खोलकर उसे देखती खुद दूसरी तरफ करवट बदल गई। वारिक ने उसकी इस हरकत को बहुत एंजॉय किया था, जबकि वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी। उसे अपने बाजू पर हल्की सी गरिफ महसूस हुई, फिर अपनी गर्दन पर गर्म सांसों के लम्स के साथ उसने किसी के होंठों का लम्स भी महसूस किया। उसके सारे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को उसकी तरफ देखने पर आमादा किया। अंधेरे में वो उसका चेहरा ठीक से देख तो नहीं पा रही थी, लेकिन लाइट बल्ब की रोशनी में वो उसके ऊपर झुका पूरी तरह बहका था। ये क्या कर रहे हो तुम? वो उसके सीने पर हाथ रखते उससे पूछने लगी। उसका दिल बहुत बेतरतीबी से धड़क रहा था कि वो उसके इतना करीब क्यों है। वो तो उससे नफरत करता था, उसे अपने भाई की गर्लफ्रेंड समझता था, उसके किरदार पर उंगलियां उठाता था, तो वो उसके इतने करीब क्यों आया? क्या रात की तन्हाई में वो उसका फ़ायदा उठाना चाहता था? लेकिन नीम अंधेरे में नज़र आती उसकी आंखें तो कुछ और ही बयान कर रही थी। वो आहिस्ता से उसका हाथ अपने सीने से हटाते दूसरे हाथ से उसका चेहरा ऊंचा करता उसकी तरफ झुका था। मायरा ने कोई हरकत नहीं की। वो कुछ सोच ही नहीं पाई थी, जैसे दिलो दिमाग हर तरह की सोचने समझने की सलाहियत खो बैठा था। वो बस बेबसी से अपने आप को उसके हवाले कर गई। अगर वो मज़ाहमत करती तो शायद ये सब कुछ वारिक के लिए इतना आसान ना होता। शायद वो उसे रोक सकती थी इतना आगे बढ़ने से, लेकिन उसने खुद ही नहीं रोका। वो खुद ब खुद सारी हदें पार करता गया और मायरा, जो पूरी तरह से इस रिश्ते से इनकारी थी, उस शख्स को अपना शोर मानती ही नहीं थी। न जाने कैसे उसकी बाहों में पिघलती चली गई। वो कब से बेड पर लेटी छत को घूरे जा रही थी। कल रात जो कुछ हुआ था वो काफ़ी अजीब था। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। क्या समझ रहा होगा ये शख्स कि आखिर उसने उसे रोका क्यों नहीं? और अगर उसने उससे जवाब मांगा तो वो उससे पूछ भी नहीं सकती थी कुछ, क्योंकि उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई थी। वो क्यों उसे इनकार नहीं कर सकी? क्यों उसे खुद से दूर नहीं कर सकी? वो कोई उसको फोर्स तो नहीं कर रहा था। मर्द था, बहक सकता था। वक्ती जज्बात से मजबूर होकर शायद उसके पास आ गया था, तो इसका ये मतलब नहीं था कि वो अपना आप उसके हवाले कर देती। उसे रोकना चाहिए था, उसे खुद से दूर रखना चाहिए था, क्योंकि वो उसके साथ इस रिश्ते को कबूल कर गई थी। वो शख्स उसका सारी ज़िंदगी साथ निभाने वाला नहीं था। वो सिर्फ चंद दिन की शादी थी। ताश पहन के आते ही वो उसे इस घर से धक्के मार कर निकाल देने वाला था और उसकी जगह शायद उस सदफ को लाने वाला था। तो क्यों उसने अपने साथ ऐसे किया? सदफ उसकी पहली मोहब्बत थी, उसकी चाहत थी, जो उसका घर बसाने वाली थी। क्या हालत थी उस बेचारी की कल? उसने देखा था वो सारा दिन बोलाई बोलाई फिरती, अपनी माँ की डांट सुनती, उदास सी सबसे मिल रही थी। वो मोहब्बत करती थी इस शख्स से, और ये भी तो उससे मोहब्बत करता था। तो कैसे उसकी मोहब्बत ने उसे उसके पास आने की इजाज़त दे दी? क्या वो सदफ को इस बारे में बता पाएगा? हाँ, क्यों नहीं। अगर कोई गुनाह नहीं किया था उसने उसने कोई गुनाह नहीं किया था। मायरा उसके निकाह में थी और उसके पास ये सबसे मजबूत दलील थी। वो तलाक के बाद सदफ के साथ आगे बढ़ जाता और वो सारी ज़िंदगी अपनी गलतियों पर पछताती रहती। हाँ, गलती ही तो हुई थी उससे कल रात कि उसने अपना आप उस शख्स के हवाले कर दिया, और अब शायद उसे सारी ज़िंदगी इस गलती पर पछताना था। वो बुरी तरह से सोचों में गर्क थी जब अचानक किसी ने उसे खींचकर अपने बाजुओं में कैद किया। ये क्या बदतमीज़ी है वारिक! वो चिल्लाते हुए बोली तो दूसरी तरफ, जबकि उसके चिल्लाने का असर ही नहीं लिया गया था। वो आंखें बंद किए उसे मजबूती से खुद में कैद किए, शायद दोबारा सो गया था। उसने मज़ाहमत करने की कोशिश की, उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी मज़ाहमतें दम तोड़ गईं।